Welcome everybody. We are discussing the life process, and in the life process, we are discussing the topic transportation. That is, we have so far discussed up to human circulatory system, under which we have discussed up to anatomy of heart, blood circulation through heart, double circulation, and significance of double circulation. So these are the topics we have already discussed under transportation in the chapter life process of class 10. Okay. So now in this session what we are going to discuss, we'll discuss what is blood, the structure of blood, then the lymphatic system. Let us start with the blood. Blood is a connective tissue which plays the role of the carrier for various substances in the body. Why it is called connective tissue? Tissue means there must be cells. So if we use, even though the blood looks like a liquid, if you see the blood under microscope, you can see millions of cells are there. So it is a tissue. Then why it is called connective tissue? Because the blood is a tissue that connects the different parts of the body. Okay, so that's why it is called connective tissue. And while it is connecting one part of the body to the other part, it carries various substances like digested food, gases, excretory materials from one part to other part of the body. Now, what is the composition of the blood? The blood composed of plasma and blood cells. So what is blood plasma? Blood plasma is a pale colored liquid which is mostly composed of water. About 90% of the plasma is water, and blood plasma forms the matrix or base of the blood. Now what are the blood cells? There are three types of blood cells in the blood. Uh, the red blood cell or the red blood corpuscles RBCs, white blood corpuscles or WBCs, and platelets. So these are the three types of cells present in the blood. So first one is red blood corpuscles or RBC. These are of red color because of presence of hemoglobin, which is a pigment. Okay. Hemoglobin readily combines with oxygen and carbon dioxide. Okay, so it can combine with both carbon dioxide and oxygen. The transport of oxygen happens through hemoglobin. Okay, some part of carbon dioxide is also transported through the hemoglobin. देखो हमारे blood में both carbon dioxide and oxygen होता है, but oxygen is mainly transported through hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. लेकिन कुछ मात्रा में 3 to 7% of carbon dioxide is also transported by your hemoglobin and that forms your कार्बामिनोहेमोग्लोबिन. ठीक है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कैसे आपका कार्बामिनोहेमोग्लोबिन बनता है. सो इट कैन ट्रांसपोर्ट बोथ. ओके, इट कैन कैरी बोथ, बट प्रिडोमिनेंटली ज्यादा किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा. ओके, and the next cell is your white blood corpuscles or WBCs. These are of pale white color cells and they play important role in immunity. हमारा बॉडी का इम्यूनिटी डिपेंड करता है WBC के ऊपर. ठीक है, क्योंकि ये WBC ही आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस और द हार्मफुल particles or the pathogens that enters into our body. The third type of cells are the platelets. The platelets are responsible for blood coagulation. Blood clot जो होता है, देखो आपका कहीं कट गया, ठीक है, तो वहां से ब्लीडिंग होने लगता है. अगर ब्लीडिंग बंद ना हो तो क्या होगा? बॉडी से सारा ब्लड चला जाएगा एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेटलेट, आफ्टर सम टाइम्स ऑफ ब्लीडिंग द ब्लड क्लॉट्स और द ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लट जम जाता है. ठीक है, तो platelet are responsible for blood coagulation and the blood coagulation is the defense mechanism
which prevents excess loss of blood in an injury. ठीक है, excess blood निकल ना जाए उसको रोकता है by clotting the blood. Here you can see in the diagram. This is the blood vessel. The blood is flowing. So here you can see the RBCs. It is shown in red color because of the presence of the red, the hemoglobin pigment. And then it occupies about 41%. ब्लड का जितने सेल्स होते हैं उसमें से 41% होते हैं आपका रेड ब्लड सेल. ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर आपका ये जो ब्लड का पूरा ब्लड का 41% होता है रेड ब्लड सेल. देन प्लेटलेट्स होते हैं only 1%. Okay, so this is only 0.01%. Then your white blood cell or WBC is 4%. Okay, and this one is your 55%. प्लाज्मा 55% होता है और बाकी सब सेल जो है 45% होते हैं और उस 45 में से 41% होते हैं रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं 4% एंड प्लेटलेट्स होते हैं 0.01%. लेकिन ये 0.01% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, so here you can see here again these white blood cells are of these are the white blood cells. so ये white blood cell फिर different types के होते हैं जैसे lymphocyte, basophil, eosinophil, monocytes, neutrophil. इसका types और उसका function क्या है आप higher class में पढ़ोगे. तो here you can see the red blood cells and these are the white blood cells and these are the platelets. Okay, so these are the elements of the blood and the fluid part is called plasma. Now, what is the role of platelets? What happens if this system of tubes develops a leak? मान लो ये ट्यूब में लीक हो गया, कहीं पर लीक हो गया. देखो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है आपका जो ब्लड वेसल होता है वो फट जाता है कहीं पर. फट जाने से क्या होता है वहां से ब्लड लीक हो जाता है, लीक होके ब्लीडिंग हो जाता है. लेकिन ब्लीडिंग होने के बाद वहां पर क्लॉट बच जाता है. अदरवाइज क्या होगा वहां से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता रहेगा. ठीक है, सो आप सोचो अगर इंजुरी हुआ और ब्लीडिंग खत्म ही नहीं हुआ तो क्या होगा. इट इज ऑब्वियसली यू विल बी एनीमिक. आपको एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से, बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज हो जाएगा. ठीक है, सो इसमें क्या होगा ब्लड का क्वांटिटी आपके बॉडी में कम हो गया. तो ब्लड का क्वांटिटी कम हो जाने से बॉडी के सारे ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन सही मात्रा में कैरी नहीं हो पाएगा और सारे बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, और जो ब्लड का जो प्रेशर था नॉर्मल प्रेशर था वो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा और पंपिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है, तो टू अवॉइड दिस the blood has platelets which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. ठीक है, तो कहीं भी इंजुरी होता है तो प्लेटलेट इमीडिएटली वहां पर आपका क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता है. वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे किस तरह प्लेटलेट क्लॉट में है क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है. तो वंस ये क्लॉट हो जाता है तो जहां पर लीकेज हुआ है उसको बंद कर देता है और फर्दर लीकेज नहीं हो सकता. Now functions of circulatory system और blood का काम क्या है. Blood transports oxygen from lungs to body and carbon dioxide from body to lungs. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हेमोग्लोबिन और ब्लड का हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है. उसके अलावा ब्लड में जो प्लाज्मा है प्लाज्मा में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और हेमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम that is simple intestine to the body that carries. जब इंटेस्टाइन से ब्लड कैरी करता है तब क्या होता है उसमें आपका जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस एमिनो एसिड
ग्लूकोज और फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू द ऑर्गन्स। हमारा जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, वहां से हार्मोन भी डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, तभी जाकर वो काम करता है, तो ये भी कैरी करता है ब्लड। देन ब्लड ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी टू किडनी। बॉडी के चारों तरफ से वेस्ट सब्सटेंस को कलेक्ट करके किडनी में लाता है ब्लड। ब्लड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस। कैसे? ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में क्या है आपका, हमने बोला कि इम्यून सिस्टम है। तो ब्लड में कुछ सेल होते हैं जो कि जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाता है, तो उसको मार डालते हैं। तो इसी तरह ब्लड हमारे बॉडी को डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। ब्लड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, 4 डिग्री फ़ारेनहीट या 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्लड ओनली। ठीक है, ब्लड क्योंकि पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए होल बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री मेंटेन करता है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जैसे ब्लड एक फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, उसी तरह लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है। एंड इट इज सिमिलर टू ब्लड। इसका कंपोजिशन क्या है? ब्लड के बराबर है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं होता, उसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लाज्मा भी होते हैं। Lymph is formed from the fluid which leaks from blood capillaries and goes to the intracellular space. देखो, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बोला, वेन एंड आर्टरी, उसके साथ जो लिम्फ है, लिम्फ का कनेक्शन होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आपका लिम्फ बनता है और लिम्फ बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब देखो ये सेंटेंस आप पढ़ो, लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लूइड which leaks from the blood capillary. blood capillaries में ब्लड होता है, उस ब्लड से लीक होके लिम्फ निकलता है। ठीक है, और वो इंट्रासेल्युलर स्पेस इन द टिश्यू, टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में चला जाता है। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लीफ वेसल्स। जैसे आपका ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज है, उसी तरह लीफ वेसल्स होते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बाद में वापस कैपिलरी में आकर ब्लड में चला जाता है। मैं आपको डायग्राम के साथ समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर, यस, आप यहाँ देखिए, ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इससे इसका जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, अब देखिए, lymphatic system picks lymph from body parts and pumps into to the veins going to heart. इसमें अब डायग्राम में देखो, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये हमने क्या बोला आपको, ब्लड कैपिलरी से लीक होता है। ये जब लीक होता है तो इसमें आरबीसी नहीं जाता, बाकी सारी चीज चला जाता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ये कैरी होता है, और बीच बीच में इसका ब्रांचिंग भी होता है, जिसको लिम्फेटिक नोड कहा जाता है, लिम्फ नोड कहा जाता है, और इसमें भी भाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। फिर ये देखो, ये फिर ऐसे आया यहाँ से, ठीक है, कैपिलरी से आया, कैपिलरी से आकर यहाँ, मान लो यहाँ कोई ऑर्गन है, वहां पर टिश्यू के बीच में से होते हुए फिर ये आपका वेन में आ गया। ठीक है, वेन में आ गया, फिर वेन से ये सर्कुलेट हुआ, ब्लड सर्कुलेशन से, फिर वो प्यूरिफाई हुआ, फिर वो कैपिलरी से फिर से वापस आया। ठीक इसी तरह आप देखिए, यहाँ से, यहाँ टिश्यू से, टिश्यू में आपका जो कैपिलरी है, कैपिलरी से रिलीज हुआ, उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, लिम्फ को। सो रिलीज होकर आप देखो यहाँ लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसके साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होता है, उसके थ्रू आया, फिर आपका लिम्फ नोड, यह जंक्शन होते हैं जहां पर कुछ ऑर्गन होते हैं, वहां से होते हुए फिर वो वेन में आ गया। सो दिस कंस्टिट्यूट्स योर लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फेटिक वेसल्स होता है, जिसके थ्रू आपका लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू से जो रिलीज होता है फ्लूइड,
जो कि वेन से रिलीज होकर निकल के आता है। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इट कलेक्ट्स लेफ्ट ओवर प्लाज्मा फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में से जो प्लाज्मा बच जाता है उसको वो कलेक्ट कर लेता है, जो एक्सेस प्लाज्मा होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। It is responsible for taking big molecule of protein, fats, etc. to the blood. So देखो टिश्यू से ये कलेक्ट करके वेन में जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रीवियस डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखो ये टिश्यू से, कैपिलरी कहाँ होता है, टिश्यू से फ्लूइड कलेक्ट किया थ्रू कैपिलरीज, इसका भी कैपिलरीज है, उस कैपिलरी से निकलते हुए, टिश्यू से निकलते हुए फिर वो ब्लड में लाया। तो टिश्यू से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, इसको वो कैरी करके ब्लड में लाता है, ठीक है। सो ब्लड डायरेक्टली क्या लेता है टिश्यू से, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए ब्लड में आता है, ठीक है। फिर ब्लड उसको थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे पूरे बॉडी में होता है। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। ये तीसरा फंक्शन है, व्हेन lymph passes through lymphatic nodes, germs are killed by WBC। वहां जो जंक्शन है, जो जैसे एक ट्रैफिक पॉइंट होता है, उसी तरह लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जहां पर आपका WBC, लिम्फ में आपका WBC है, RBC नहीं है, बट ज्यादा WBC है। वो WBC मैंने आपको बताया कि ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। कैसे, ये WBC हमारे बॉडी में जो जर्म एंटर करते हैं उसको मार डालते हैं। कहाँ मारते हैं, लिम्फेटिक नोड्स में। तो ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम, और ब्लड के बारे में हम डिटेल्स में पढ़े, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको हायर क्लासेस में देंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, देन ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। और